Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. Students, in this video we are discussing important current affairs for 5th of December. The session will be quite interesting and important, students. In this video we are talking about Dr. Jitendra Singh, who jointly inaugurated World Summit on Disaster Management in Dehradun. Then Government of India has approved 5% sustainable aviation fuel blend by 2030 for international flights. Then BIS, they have unveiled India's new seismic map, and entire Himalaya has been placed under the high risk danger zone. NHAI, that is National Highway Authority of India, and Reliance Jio, they have signed an MOU. We will be discussing about it. All these things and many more will be discussed in this video, students. Multiple MOUs, multiple one-liners will be discussed in this video. So stay tuned with us till the end. If you are new here, students, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs, students. First is Dr. Jitendra Singh jointly inaugurated WSDM, that is your World Summit on Disaster Management in Dehradun. Right? This was a conference that was held from 28th of November to 30th of November. This was held at the Graphic Era Silver Jubilee Convention Center in Dehradun, Uttarakhand. Important, right? And during this, as the name suggests, disaster management, the focus will be on how we can prepare ourselves for any disaster that comes in the future, right? Apart from this, three weather Doppler radars were also inaugurated here. Where are they located? They are in three locations, that is in Haridwar, in Patnagar, and in Oli, right? These three new Doppler weather radars were launched. That is DWR, not DRW, DWRs. Correct? Take a note of this. So two things here. Then next thing, remember here, felicitation of the young women scientists' achievements were done. Right? This is an award that is given to the young women scientists, right, for their excellence in their science work. Correct? So take a note of this. Apart from this, recently Maitri 2.0 was launched, right, and it is to boost the agri innovation and global food security. It was launched jointly by India and Brazil. And if you remember, in Brazil, Belém, COP30 was also held lately, right? Then India and Morocco, they signed a memorandum of understanding for defense cooperation, right? Next, students, Government of India has approved 5% sustainable aviation fuel blend by 2030 for international flight. That means all the international flights by 2030, they will be having 5% blend here, right? Sustainable aviation blend. Target here is to achieve 1% by 2027, then 2% by 2028, and 5% by 2030. Correct? Here it is for the sustainable aviation fuel blending targets for the traditional jet fuel. The initial sustainable aviation fuel blending will apply to international flights that are departing from India, and at present a total of 93 airports in India have switched over 100% green energy usage here. Right? Take a note of this. Then here we are talking, you can see the target here, and the target is to reduce carbon emissions from the aviation sector, as aviation sector is one of the largest sector that is creating a lot of pollution and releasing a lot of carbon. Then Government of India recently partnered with which platform in order to enhance the employment opportunity? So it was Zepto, right? Then UP, they will be hosting the 19th edition of the National Jamboree of Bharat Scouts and Guides, and where this will be, it will be in Lucknow, as Lucknow is in UP. Correct? Next, also remember, our country India, we have been elected to the Interpol Asian Committee. Next, BIS, that is Bureau of
Indian standards, right? This is a statutory body that comes under the Ministry of Corporate Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and they have unveiled India's new seismic map, and they are saying that the entire Himalayan region, it has been placed under high risk and danger zone. That means the earthquake, the probability of earthquake in those areas is quite high, because under these Himalayas we have tectonic plates, and because of the movement on those tectonic plates, there is a high chance that earthquakes will be coming, and the earthquakes can be of high intensity. Correct? Take a note of this. This data was released by BIS lately. Then earlier the maps were basically divided into zone 2 to zone 5, and now zone 6 has been also included, that is the highest risk category here. Then PSHA, right, that is your probabilistic seismic hazard assessment methods has been used here, and various active faults, maximum potential magnitude on each fault, tectonic regime of each region, right, they were discussed. Basically this is done so that we can predict that what are the areas of high risk in India, right? And here Himalaya has been now placed under the highest risk here, and it is expected a 75% population exposure to this risk. Then apart from this, remember students, recently India's cold desert biosphere reserve in Himachal Pradesh was added to the UNESCO's global network, right? And recently Prayas, this is basically first of its kind neuro rehabilitation center that was inaugurated by Ayush Ministry, and it was at AIIA in Goa where this was inaugurated by the name Prayas. Next is NHAI, National Highway Authority of India, and Reliance Jio. They have signed a memorandum of understanding to deploy telecom based safety alerts across the national highways. That means if there is a emergency on the national highway, correct, so these will provide timely alerts. Timely alerts can be provided to the National Highway Authority, right? This will help them to make informed decisions and drive more safety. Correct? There will be various alert mechanisms here. Also an application by the name Rajmarg Yatra was also launched, if you remember, and there is a helpline number 1033 also. And this Rajmarg Yatra is basically that application where you can go and buy 3000 rupees annual toll pass also, that will be providing you 200 rides. Correct? So this is your telecom based safety alerts across national highways will be promoted here. This will be promoting safety and timely alerts to the national highway users. Next is Sahakar Taxi Cooperative begins soft launch of Bharat Taxi in Delhi and Gujarat. Take a note of this. This Sahakar Taxi Cooperative Limited, this is a multi-state cooperative registered under the Multi-State Cooperative Societies Act, and they have begun their soft launch. That means slow and steady they are launching, not in a full scale, but in certain areas they have started to launch, and it is a soft launch of this Bharat Taxi, that is a ride hailing services, and it has been launched in New Delhi and Gujarat. Correct? There was earlier some pilot projects running at the Delhi airport, and now it has been successful, and now we will be seeing an official launch by January 2026. This will be similar to that of Ola and Uber. Correct? So take a note of this. And this Sahakar Taxi, correct, it will be India's first driver owned national mobility cooperative. There will be a platform, also an application, that is Bharat Taxi. You can go and download it from the Google Play also. Correct? And they will be integrated with Delhi Metro here. And this model, this Sahakar Taxi, it will be a zero commission model. That means they won't be charging any commission. All the money earned from that platform will be directly going to the driver. Next students, next is Government of India has renamed Prime Minister Office to Seva Tirth. I repeat, Government of India, they have renamed the Prime Minister's Office, that is PMO complex, to Seva Tirth. Correct? This is to highlight the focus on service oriented, citizen centric governance here. Correct? Take a note of this. Next, one more thing. Okay, here tell me, recently driverless vehicles and marine transport ecosystem was launched. That is a 15-kilometer dedicated corridor, right? It is for driverless vehicles. It was launched by Dubai, right? Then K visa, when Donald Trump imposed a fee of $100,000, right, on the H1B visa holders. Then K visa was launched by which country to help the Indian techies? It was China. Next is Odisha's Chief Minister Mohan Charan Manji inaugurated 15th International Sand Art Festival in Konark.
right? This Konark festival, it is where basically Konark Sun Temple, that is in Konark, Odisha, right? This is the heritage site, and here only Mohan Charan Manji, the Chief Minister of Odisha, has inaugurated the 15th International Sand Art Festival and the 36th edition of the Konark Festival. So these two things were inaugurated lately. Important, students, right? Then apart from this, remember recently S&P Global, they have projected how much GDP growth for India. It is 6.5%, right? Then NPCI, National Payment Corporation of India, and Qatar National Bank, they have also partnered together in order to enhance the UPI payments in Qatar, right? Then Geo Payments Bank, right? They launched a saving plan, that is Savings Pro. Savings Pro, that is an auto invest surplus funds, where they will be getting customers or the investors here, the money, the people will be getting an returns of 6.5%. Next is Indira Gandhi International Airport became India's first high capacity water positive airport. What does this mean? First of all, this Indira Gandhi International Airport, it is in New Delhi, right? And it is the first high capacity airport handling over 40 million passengers. They have been certified as water positive by the CII Triveni Water Institute. Correct? What does this means? Water positive. That means a water positive facility is basically when they return more water to the environment than the total amount of water it draws for their operation. That means the amount of water they are consuming, they are getting more water in return to the environment. This is basically a sustainable method, right? And Indira Gandhi International Airport has now been declared as water positive. Correct? Then who became the first women of Indian origin to chair UNEP FI Global Sustainable Insurance Board? She is Amita Chaudhary. Right? Then tell me recently who has been appointed as the new Director General for ITBP, Indo-Tibetan Border Police Force. Correct? Praveen Kumar. Director General of CISF, new Director General of CISF, Praveer Ranjan. Next is international affairs, students. Hindustan Aeronautics Limited, Bharat Electrics Limited, and Madgaon Dock Shipbuilders Limited. They were featured in the SIPRI's top 100 global arm producing companies as per 2024. Take a note of this, right? These are the three organizations that have featured into the SIPRI's top 100 global arm producing companies list of 2024. If we look at the data here, you can see Lockheed Martin was on the first position. Let me show you the list itself. Lockheed Martin of USA first, RTX of USA second, Northrop Grumman Corporation third, BAE Systems of UK fourth, and General Dynamics Corporation of USA at fifth position. If we talk about Indian companies, Hindustan Aeronautics Limited at 44th, Bharat Electronics Limited at 58th, and Madgaon Dock Shipbuilders Limited at 91st position. Right, students, take a note of it. Then apart from this, tell me who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Tata Motors. So Sailesh Chandra has been appointed here. Next students, IWMI. What is this IWMI? IWMI is your International Water Management Institute. This is a global non-profit organization, right? And Swiss Agency for Development and Cooperation, that is SDC. I repeat, IWMI and SDC, they together launched the second phase of the solar energy for agriculture resilience in India and Bangladesh and Kenya and Ethiopia. This initiative will accelerate the climate resilience, solar powered irrigation and solar based agriculture technologies across South Asia and East Africa. What does this mean is that on the farms, right, solar energy will be promoted. Solar panels will be promoted, and all the energy that are consumed on these farms will be coming from solar energy, right? That means fossil fuels such as your diesels and petrols, the usage of them will be they will be eliminated, as the energy required will be now green energy. Correct? The farmers, they can directly use these solar panels, right? As it will be beneficial for them also, as they can sell the electricity generated from these solar panels back to the government also.
correct. So in order to promote solarization in the agriculture sector, this partnership has been done between International Water Management Institute and Swiss Agency for Development and Cooperation, and this is the second phase of the solar, that is solar energy for agriculture resilience. Moving on to banking and finance, students, SEBI has introduced a single window gateway for low risk foreign investors, that is Swagat FI. FI is your foreign investors, right? So recently SEBI, they have introduced this single window gateway for low risk foreign investors, that is Swagat FI. What does this Swagat stands for? Single window automatic and generalized access for trusted foreign investors, right? The aim here, why was this launched? This is to provide easier investment access, then enable unified registration process and reduce the repeated compliance and documentation for various entities. The effective date will be coming to, for that is 1st of June 2026. This will be coming into effect, correct? And it is Swagat FI, that is single window automatic and generalized access for trusted foreign investors. This Swagat was launched by SEBI. This direct question, then full form will be asked for this Swagat, correct? And also when this will be coming into effect, it will be coming into effect from 1st of June 2026, correct students? Also, one more step has taken by SEBI is that in order to promote long-term investor participation, earlier the KYC was done for 3 to 5 years, which now has been extended to 10 years. Next is Life Insurance Corporation has launched two insurance products, that is Protection Plus and Bima Kavach. Let me show. We are talking about Protection Plus. This is a non-participating linked life individual saving plan that will combine life insurance protection with saving opportunities. The minimum age to enroll here is 18 years and the maximum age here is 65 years. Right? This is Protection Plus. Then next is Bima Kavach. Here it is non-participating, non-linked life individual pure risk plan providing financial protection to the family in the case of insured's unfortunate death during the policy term. Minimum age is 18, maximum is 65, and the minimum basic sum insured here is of 2 crore with no upper limit depending upon the underwriting norms. Next, here you can see the difference between the two. These are the two products launched lately by LIC. The next is awards and recognition, students. Warrior Cotton. Let me show you the 5 products. First of all, remember 5 products from Tamil Nadu recently got the GI tag, and Tamil Nadu is now the second state with the highest number of GI tags. Your homework is to tell me the state with the maximum number of GI tag, students, right? And also how many GI tag products are that from that particular state. So 5 products, that is Warrior Cotton Sari, Kavindapadi Natu Sakarai, that is jaggery powder, then soapstone cookware, and Thuamali rice, and Ambasudumuram Chopu Saman, that is wooden toys. So these are the 5 products that recently got the GI tag. They are from Tamil Nadu, and it became the second highest state in India with the 74 products that got the GI tag. Moving on to appointments and resignation, students. Austria's Stefan Pressner, as you can see him in the picture, recently appointed as the UN Resident Coordinator in India. So who has been appointed as the UN Resident Coordinator in India? Austria's Stefan Pressner, as you can see him in the picture. Now, what will his role be? He will be collaborating between India and UN, right? He will be promoting UN development programs in India, sustainable development programs in India, right? That are linked with United Nations. If we talk about Austria, students, what is the currency used in Austria? It is Euro. And what is the capital? It is Vienna. Next is ONGC Chairman Arun Kumar Singh gets 1 year extension till 2026, right? So ACC approved 1 year extension of Arun Kumar Singh as the chairman of ONGC, that is Oil and Natural Gas Corporation. His term has been extended till 6th of December 2026. Moving on to obituary, Italian tennis legend Nicola Pietrangeli has recently passed away at the age of 92 in Rome, Italy, right? And he was added to the Tennis Hall of Fame in 1986. Moving on to important days, students. Indian Navy Day observed on 4th of December, and this day is to basically promote the Indian Navy. It is to commemorate the accomplishments of Indian Navy and the work they do for safeguarding our country. There is a theme that I want you to remember: combat ready, cohesive, credible, and Atmanirbhar force. First time it was observed in 1944, and Indian Navy Week is observed from 1st to 7th of December.
Next is International Day of the Banks, observed on 4th of December, and this day is observed basically to highlight the importance of bank, right, and also to acknowledge the crucial role of the banking system in the UN member states in enhancing the living standards and supporting development. Because we are talking about International Day of Banks, hence we are focusing on the UN member states, right, the banking systems in the UN states, right, UN, that is playing a major role here. And this is the 6th edition of this day that was observed. There is a theme here, theme being banks powering a livable planet. This is the theme that I want you all to remember, correct? And first time this day was observed in 2020. So that's all for the day, students. These were your important current affairs. Apart from this, Israel, they launched Iron Beam, right? Then apart from this, tell me who recently, or tell me recently, Living Bridge, who was honored with Living Bridge lately? So UK's Prime Minister Keir Starmer was honored with this Living Bridge award for strengthening India and UK ties. Then who Diljit Dosanjh, the famous singer, he bagged the International Emmy 2025 nomination for Amar Singh Chamkila. Correct? So students, these were your important current affairs. Now let's move to the revision part that will be quite beneficial for you all. Next, who will assume the chair of International Institute for Democracy and Electoral Assistance in 2026 as announced by the Election Commission of India in November? So Ganesh Kumar, right, will chair this IIDEA in 2026. Next, which of the following developed the indigenously built anti-submarine warfare shallow watercraft INS Mahi commissioned by the Indian Navy in November? So which is that shipbuilding company? It is Cochin Shipyard Limited, CSL. Next is select the company that signed a technology transfer agreement with the Defense Research and Development Organization, that is with DRDO, in November for the manufacturing of the driver night sight system for T-90 tanks. So basically what it is a night vision that will be for the T-90 tanks, and DRDO awarded this technology transfer agreement to which company? That is Paras Defense Space and Technologies. Here what happened is DRDO, they did research and development and innovated this technology, and now it has been given to Paras Defense and Space Technologies Limited, who will be further working upon it and making this technology. Next, the International Shooting Sport Federation World Championship Rifle Pistol 2025 was conducted in Cairo, Egypt in November, where India secured third place with 13 medals. At the championship, the nation that topped the overall medal tally was what? So here the medal tally was topped by China. China topped with a total of 21 medals, out of which 12 are gold, 7 are silver and 2 are bronze. South Korea was on second position here with 14 medals, correct? And our country India, we are at the we secured 13 medals here, right, out of which 3 are gold, 6 are silver and 4 are bronze. Next, who won the Las Vegas Grand Prix held in USA in November? So who won it? It was won by Max Verstappen. Max Verstappen drives for Red Bull, right? He's a Belgian Dutch driver. Max Verstappen was on the first position, George Russell secured second position, and Kimi Antioli secured third position. He is from Italy and George Russell is from Netherlands. Oh sorry, George Russell is from UK, right? Max Verstappen is from Netherlands, right? Belgian Dutch driver. Next, name the team that the Indian women's kabaddi team defeated in Dhaka, Bangladesh in November to win the second edition of the Women's Kabaddi World Cup. It is Chinese Taipei. Next, the Australian Open 2025 badminton held in Sydney, Australia from 18 to 23rd of November as a Badminton World Federation Super 500 tournament. Name the player who won the men's single title here. So Lakshya Sen has won the men's single title here. Men's single title here. Next is choose the correct statement regarding the 25th Summer Defy Olympics held in Tokyo, Japan. This is the first question itself. Which edition? It is the 25th edition. Where was this held? This was held in Tokyo, Japan. Right? So if we look at the options here, we have to find the correct statement. Option A is right, B is right, option A is right and C is right. C is wrong, which is our answer. B is saying that the 2025 Summer Defy Olympics were organized by International Olympic
Committee. Was it organized by the uh, International Olympic Committee? No, it was organized by whom? It was organized by International Committee of Sports for Deaf, right? They organized this event. Next, where will the 2030 Commonwealth Games be hosted as approved by the Commonwealth Games Federation General Assembly in November? So they will be hosted in Ahmedabad, Gujarat. Ahmedabad is also considered as the sports capital of India, right? And India gave a bid that we will be hosting 2030 Commonwealth Games in Ahmedabad, Gujarat, and which it has been approved. Also, India bid for 2036 Olympic Games, right? Let's see what happens for that. But for the Commonwealth Games, we have won the bid. Next, the 11th Fight Chess World Cup 2025 was held at Dr. Shama Prasad Mukherjee Indoor Stadium in Goa from 31st of November to 27th of November, who emerged as the youngest ever champion of the tournament. Here, Javokhir Sindrov, right, of Uzbekistan has became the youngest ever champion of this Fight Chess World Cup 2025. Where was this event held? This was held in Goa. Next, renowned Bollywood actor Dharmendra Kewal Krishnan Deol, popularly known as Dharmendra ji, right, also famously known by his actor term Viro, right, he recently passed away. Question asked is when he was honored with Padma Bhushan award. So he was honored with Padma Bhushan in 2012. Correct? Take a note of this. And this Padma Bhushan, it is the third highest civilian award. Next, when is National Constitution Day, that is Samvidhan Divas, observed annually to commemorate the adoption of the Indian Constitution? It is observed on 26th of November, right? On this day, the Constitution was made, right? Or it was basically adopted in 1949. And this is the 76th anniversary that we observed in 2025, correct? For the adoption of the Constitution of India. Next is National Milk Day is observed annually on 26th of November to commemorate the birth anniversary of whom? So remember, if we talk about milk and if we are talking about Milk Day, right, this is the birth anniversary of the father of White Revolution, that is Dr. Varghese Kurin. Important question, students. Also known as the milkman of India. Next, in November, Bokaro Steel Plant of Steel Authority of India Limited, they signed a licensing agreement for the transfer of technology with Defense Metallurgical Research Laboratory under the DRDO. In which state Bokaro Steel Plant is situated? So this plant is situated in Jharkhand. Take a note of this, students. Where is this situated? It is situated in Jharkhand. Next, in November, the 13th Joint Military Cooperation Committee meeting between India and Oman, it was held, that was focusing on defense industrial cooperation, right? Here, this was held in Indian Ocean region, that took place where, right? This is basically for Indian Ocean regions, for their defense collaboration, for the strategic coordination there, for the safety of that region, right? So for this, India and Oman conducted this 13th edition of the Joint Military Cooperation meeting. Where was this held? It was held in New Delhi, India. Next is, in November, a massive volcanic ash plume drifted across key India Gulf flight corridors after the eruption of the Heli Gubi volcano. This is located in the Horn of the African region. Question is, the disruptions led to the widespread cancellation by Indian Airlines, and the Heli Gubi volcano is situated in which country? You must have heard this news that because of this eruption of this volcano, a lot of pollution will also be coming to India, and because of this, large number of flights were also disrupted. So question is, this Heli Gubi volcano, this is located where? It is in Ethiopia. Next is, name the organization that partnered with Gavi, the Vaccine Alliance, in November to announce a landmark pricing and procurement agreement aiming at reducing the cost of R21 Matrix M malaria vaccine. So name that organization. It is UNICEF, right? They have recently partnered with Gavi. They have partnered with Gavi for this. Next is, in November, Bank of Baroda, there was honored as a winner in the Avatar and Saramount Best Companies for Women in India, recognizing their commitment towards inclusive, diverse and equitable workplace. Identify the headquarters of Bank of Baroda. Where is the headquarters of Bank of Baroda located? It is in Vadodara, Gujarat. Our homework section. First question is, tell me who is India's next ambassador to Ireland. Second question, tell me recently
Tell me recently who won the Nobel Prize. Let's revise them in chemistry, in physics, and Nobel Peace Prize also. Then third question, students, recently JMX exercise was held. Let me tell you, this was held between Japan Navy and Indian Navy. Your homework is to tell me which Indian naval ship took part in this JMX. Then fourth question, students, recently Indian Coast Guard, they have launched a Indian Coast Guard ship. Name that Indian Coast Guard ship that was recently launched. That is a fast patrol vessel. Right? Take a note of this. Very important. Then tell me who will be the torch bearer. This is your fifth question, students. Who is the torch bearer for Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games? So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation for all the students watching this video. So students, that's all for the day. Thank you and have a nice day. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 5 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है WSDM को, जो कि है वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। देहरादून उत्तराखंड में ये इनॉग्रेट की गई। देन अभी गवर्नमेंट का प्लान है कि 5% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बैंड हो जाना चाहिए 2030 तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। इसको हम डिस्कस करेंगे। देन इंडिया का नया सेस्मिक मैप अभी लॉन्च किया गया और काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। इसी के अलावा एक MOU डिस्कस करेंगे, NHAI एंड रिलायंस जियो के बीच में ये MOU साइन हुआ है। इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए जुड़े हैं स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने इनॉग्रेट किया है WSDM को, जो कि है वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। ये 20वां उत्तराखंड स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है, जो कि 20 से लेके 30 नवंबर तक हमें देखने को मिला था उत्तराखंड में कहाँ पर देखने को मिला? ग्राफिक एरा सिल्वर जुबली कन्वेंशन सेंटर देहरादून उत्तराखंड में ही हमें देखने को मिला। यहाँ पे एम क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट, कि हम डिजास्टर के लिए पहले से ही प्रिपेयर रह सके। और हम जानते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे क्या है? कच्चे पहाड़ हैं। बारिश ज़्यादा होती है तो काफ़ी डिजास्टर आने के चांसेस रहते हैं, फ्लडिंग आने के चांसेस रहते हैं, रिवर्स ओवरफ्लोज आती हैं बारिश के टाइम पे, राइट। अर्थक्वेक्स अभी हम डिस्कस करेंगे, अर्थक्वेक का भी यहाँ पे बहुत बड़ा सिनेरियो एक होने वाला है, राइट। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिली। इसी के अलावा 3 और चीज लॉन्च की गई यहाँ पे, जो है डॉपलर वेदर रडार। 3 डॉपलर वेदर रडार्स लॉन्च किए गए। कहाँ पर रहेंगे ये? हरिद्वार, पटनागर एंड औली में रहेंगे, राइट। तो ये 3 नए डॉपलर वेदर रडार्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, ये याद रखेंगे। फिर इसी के अलावा यंग वीमेन साइंटिस्ट को यहाँ पे सम्मानित किया गया अवार्ड से, ताकि जो वो अपना साइंटिफिक करियर आगे बढ़ा सकें, राइट। उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको ऑनर करने के लिए यहाँ पे ये लॉन्च किया गया। तो ये 3-4 चीज़ें इस न्यूज़ से रिलेटेड मार्क करके चलेंगे, पूछे जा सकते हैं। इसी के अलावा इंडिया एंड ब्राज़ील, इन दोनों के द्वारा मिलकर अभी मैत्री 2.0 लॉन्च किया गया है। मैत्री 2.0 ये बेसिकली क्या है? एग्रीकल्चर इनोवेशन एंड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम करेगा। देन इंडिया एंड मोरक्को, राइट, इनके लिए यहाँ पे एक डिफेंस कॉपरेशन साइन किया गया, राइट। इन दोनों के लिए एक MOU साइन किया इन दोनों ने, डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए। करेक्ट स्टूडेंट्स, टेक अ नोट ऑफ दिस। इसी के अलावा याद रखेंगे, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जेप्टो के साथ पार्टनर किया था, ताकि जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा दिया जा सके इंडिया में, ठीक। अगर फिर मैं बात करूँ इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन सेलिब्रिटी कौन है? वो है विराट कोहली। इन्होंने यहाँ पे टॉप किया है विद $231.1 मिलियन ऑफ ब्रांड वर्थ, ठीक है। ये किसके द्वारा रिलीज की गई थी? क्रॉल के द्वारा इसको रिलीज किया गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दो फिर, अभी रिसेंटली किस स्टेट के द्वारा 19th एडिशन ऑफ नेशनल जम्बोरे
होस्ट किया गया। तो लखनऊ में ये हुआ। लखनऊ कहाँ पर है? यूपी में। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया 5% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ब्रांड को बाय 2030 इंटरनेशनल फ्लाइट से, मतलब इंडिया से जो फ्लाइट बाहर जाएंगी बाहर देशों में, उनमें 5% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ब्रांड होगा। इससे क्या होगा, जो कार्बन रिलीज होता है वो कम होता हुआ दिखेगा। ये जो कार्बन ब्लेंड है, टारगेट है 2030 तक 5% का। 1% का हमारा टारगेट रहेगा कि 2027 में हम अचीव करें, 2% 2028 में एंड 5% 2030 तक हम ये अचीव कर लें। करेक्ट। इससे होगा क्या, जो जेट फ्यूल्स में जो कार्बन रिलीज होता है वो यहाँ पे कम होता हुआ दिखेगा। राइट। एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ये किया जाएगा। यहीं पे अगर हम देखें 93 एयरपोर्ट्स इंडिया में ऐसे हैं जो कि स्विच कर चुके हैं 100% ग्रीन एनर्जी यूसेज पे, मतलब 93 एयरपोर्ट्स इंडिया में ऐसे हैं जो कि टोटली ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी एक न्यूज़ डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स आके, वो भी क्वाइट इंपॉर्टेंट है अगर हम सस्टेनेबली देखें तो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, BIS। इन्होंने अनवेल किया इंडिया का नया सेस्मिक मैप को, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। राइट। इनके द्वारा नया सेस्मिक मैप लॉन्च किया गया। सेस्मिक क्या है, बेसिकली आपका कहाँ पर अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। राइट। कहाँ पर ट्रेमर्स आते हैं, कहाँ पर सेस्मिक प्लेट्स हैं। राइट। जो कहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, करेक्ट, जो कि अगर हिलती हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, ट्रेमर्स आते हैं। राइट। तो अभी हमें देखा पहले क्या होता था, 2 to 5 जोन्स में इंडिया को बांटा गया था बेस्ड ऑन द सिवियरिटी। अब एक जोन 6 भी ऐड किया गया हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी का, जिसमें हिमालय को, एंटायर हिमालयन रेंज को यहाँ पे रखा गया है अंडर द हाईएस्ट रिस्क डेंजर जोन, क्योंकि बोला जा रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब जो सेस्मिक एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि कई लोकेशंस, कई विलेजेस पहाड़ों पर ऐसी हैं जहाँ पे घरों में तरेड़ आ गई हैं। राइट। क्रैक्स डेवलप होने लगे हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि वहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी है, वहाँ पे ट्रेमर्स आते हैं, वहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं, जिसकी वजह से जो घरों में तरेड़ आने लगी हैं एंड वहाँ पे इवन बड़ी बड़ी तरेड़ें आने लग गई हैं, जो कि रहने के लिए वो घर अब बचे नहीं है। तो ये काफ़ी हाई रिस्क एरिया है एंड बताया जा रहा है ऑलमोस्ट 75% पॉपुलेशन यहाँ पर ऐसी है, करेक्ट, जो कि इससे इफेक्ट होगी। फिर यहीं पे हम देखेंगे जो PSHA क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक सेस्मिक हजार्ड असेसमेंट। ये असेसमेंट की गई वेरियस एक्टिव फॉल्ट्स, क्या पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड का वहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है, क्या टेक्टोनिक रीजन्स हैं वहाँ पे, कहाँ पर कितनी बड़ी जो लेयर्स हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, कौन सी लेयर्स कहाँ पे कितनी है, कितना नीचे मटेरियल स्ट्रॉन्ग है, क्या पत्थर है, क्या वहाँ पे सैंड है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे डिटरमाइन किया गया एंड उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड रिलायंस जियो के द्वारा एक MOU साइन किया गया, जहां पे टेलीकॉम बेस्ड सेफ्टी अलर्ट्स को प्रोवाइड कराया जाएगा अक्रॉस NH, दैट इज अक्रॉस नेशनल हाईवे। इससे क्या होगा, टाइमली अलर्ट्स मिलेंगे नेशनल हाईवे यूजर्स को, ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन मिला सके एंड सेफ्टी को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ये टेलीकॉम बेस्ड सेफ्टी अलर्ट्स प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। एंड रिलायंस जियो हम जानते हैं जियो का कितना बड़ा नेटवर्क है, इसीलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इनके साथ पार्टनर किया। एक एप्लीकेशन है राज मार्ग यात्रा। ये अगर आपको ध्यान दिया हो, हमने पढ़ा था कि जो 3,000 रुपये का एनुअल टोल पास आया है जिसमें 200 राइड्स मिलती हैं, उसको आप इससे सब्सक्राइब कर सकते हैं। राइट। तो इस एप्लीकेशन की मदद ली जाएगी यहाँ पर एंड 1033 हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे रहेगा, जिससे कोई भी इमरजेंसी आती है नेशनल हाईवेज पे, राइट, आप वहाँ पर इससे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। चलिए इसी के अलावा नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, सहाकर टैक्सी कोऑपरेटिव। इनके द्वारा सहाकर टैक्सी बेसिकली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव रहेगा। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का ये इनिशिएटिव रहेगा, जहाँ पर टैक्सीज जैसे ओला उबर होता था, सिमिलर टाइप ऑफ ये प्लेटफॉर्म रहेगा। इनकी भारत टैक्सी एप्लीकेशन भी रहेगी, गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड जीरो कमीशन मॉडल पे ये रन करेंगे। मतलब जो भी पैसा यहाँ पे कमाया जाएगा वो सारा टैक्सीज को, कोऑपरेटिव जो है, जो टैक्सी ड्राइवर होंगे उनका रहेगा, कोई कमीशन नहीं देखने को मिलेगा। अभी तक ये पायलट बेसिस पे चल रहा था। कहाँ पर चल रहा था? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में चल रहा था, लेकिन अब जनवरी 2026 से गुजरात एंड दिल्ली यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा एंड सॉफ्ट लॉन्च किया जाएगा। मतलब एक साथ बहुत सारा लॉन्च नहीं कर देंगे, बहुत सारी गाड़ीज़ को, टैक्सीज़ को इसके अंडर एनरोल नहीं कर लेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एनरोल किया जाएगा। बट अब गुजरात एंड दिल्ली में ये हमें भारत टैक्सी देखने को मिलेंगी। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, इसी के अलावा याद रखेंगे अभी रिसेंटली S&P ग्लोबल, इनके द्वारा इंडिया की GDP प्रोजेक्ट की गई 6.5% की। फिर NPCI, इन्होंने कतर नेशनल बैंक के साथ पार्टनर किया ताकि UPI का बढ़ावा दिया जा सके कतर में। देन जियो पेमेंट्स बैंक, इनके द्वारा सेविंग्स प्रो, ये एक फैसिलिटी लॉन्च की गई जहाँ पे आपका जो
सरप्लस अमाउंट होगा उसको इन्वेस्ट कर दिया जाएगा एंड 6.5% तक का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। करेक्ट। इसी के अलावा अगर हम देखें अभी रिसेंटली कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स कौन अपॉइंट किए गए हैं? वंदना गुप्ता अपॉइंट की गई हैं यहाँ पे। देन फर्स्ट वीमेन ऑफ द इंडियन ओरिजिन जो कि UNEP FI फॉरेन इन्वेस्टर्स ग्लोबल सस्टेनेबल इंश्योरेंस बोर्ड के पे अपॉइंट की गई। राइट। कौन है वो है अमिता चौधरी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीनेम किया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को टू सेवा तीर्थ। रीजन क्या है? ये सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस प्रोवाइड करता है एंड सर्विस ओरिएंटेड यहाँ पे काम किया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए सेवा तीर्थ PMO का नया नाम रहेगा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का। देन अगर मैं बात करूँ कौन अपॉइंट किए गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, वो है प्रवीण कुमार। अगर मैं CISF के बात करूं तो CISF के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं? प्रवीर रंजन। ठीक है, दोनों अपॉइंटमेंट मार्क करेंगे। इसी के अलावा अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूं तो टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए हैं? शैलेश चंद्र। नेक्स्ट आ जाते हैं उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया 15वां इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल एंड 36वां कोणार्क फेस्टिवल। तो पहला है 15वां इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल और दूसरी चीज़ याद रखेंगे वो क्या है? 36वां कोणार्क फेस्टिवल। कहाँ पर होगा? कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क ओडिशा में। करेक्ट। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। इसी के अलावा पीरामल फाइनेंसिंग करेक्ट के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? आनंद पीरामल। नेक्स्ट आ जाते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसे अभी हमने बात की थी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो स्टूडेंट्स कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की एक हम बात करेंगे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली का एयरपोर्ट है ये वाटर पॉजिटिव हो गया। वाटर पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जितना पानी ये यूज़ कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस के लिए उससे ज़्यादा पानी को ये रिलीज कर रहे हैं इन्वायरमेंट में। राइट। तो इसका मतलब होता है ये वाटर पॉजिटिव है। करेक्ट। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब इंडिया का पहला हाई कैपेसिटी वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, पूछा जा सकता है इंडिया का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे स्टूडेंट्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इन तीनों ने फीचर किया है सिप्री टॉप 100 ग्लोबल आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज 2024 की लिस्ट में। देखो ये लिस्ट क्या है? सिप्री के द्वारा रिलीज की गई एंड आर्म्स मिलिट्री जो भी गन्स हो गई जैसे मिसाइल्स हो गई, गोला बारूद हो गई। राइट। तो इनको प्रोड्यूस कौन करता है? राइट। आपके एयरक्राफ्ट, टैंक्स, गन्स। करेक्ट। तो इसकी एक रिपोर्ट थी। टॉप पर आते हैं लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन USA की, RTX USA की सेकंड, नॉर्थरॉप ग्रूमन कॉर्पोरेशन USA की थर्ड, बेई सिस्टम्स UK की फोर्थ एंड जनरल डायनामिक्स कॉर्पोरेशन USA की ये 5th पोजीशन पे आती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 44th पोजीशन पे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 58 पे एंड मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 91st पोजीशन पे देखने को मिलती है। एंड ये डाटा सिप्री के द्वारा रिलीज किया गया। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं IWMI क्या है? इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। इन्होंने बेसिकली अभी पार्टनर किया SDC। लेट मी शो यू। IWMI इन्होंने स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन SDC के साथ पार्टनर किया ताकि सोलर फेज 2 को लॉन्च किया जा सके। ये सोलर फेज 2 क्या है? सोलर एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर रिलायंस। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में हम सोलर एनर्जी को प्रमोट कर सकें। राइट। सोलर एनर्जी को प्रमोट करने का रीज़न क्या होगा कि अभी हम देखते हैं जनरेटर्स को रन करने के लिए, ट्रैक्टर्स को रन करने के लिए फार्मर्स फॉसिल फ्यूल को यूज़ करते हैं, डीजल को यूज़ करते हैं। राइट। तो उस पर डिपेंडेंस खत्म करके जो भी फार्म एक्टिविटीज़ में जो भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हम उसको सोलर एनर्जी से पूरा कर सकें। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेगा। तीसरी चीज़, इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो फार्मर्स अपनी गवर्नमेंट को यहाँ पे सेल कर सकते हैं टू अर्न गुड प्रॉफिट। राइट। तो इससे बेसिकली बेनिफिट ही हमें देखने को मिलेगा। तो इंडिया एंड बांग्लादेश एंड कीनिया एंड इथियोपिया रीजन्स में यहाँ पे ये सोलराइजेशन के ऊपर काम करने की बात की गई। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। सेबी ने इंट्रोड्यूस किया सिंगल विंडो गेटवे फॉर लो रिस्क फॉरेन इन्वेस्टर्स जिसका नाम रहेगा स्वागत
FI। स्वागत FI की सबसे पहला क्वेश्चन तो आ जाता है स्टूडेंट्स की फुल फॉर्म क्या है। ये है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जर्नलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स, राइट। यहाँ पे एम क्या रहेगा इसका एम रहेगा ईजियर इन्वेस्टमेंट एक्सेस प्रोवाइड कराने के लिए, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो सके, रिड्यूस रिपीटेड कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन रिपीटेडली ना दिए जा सके। तो ये स्वागत FI का मेन एम रहेगा। स्वागत FI की फुल फॉर्म देख सकते हैं आप यहाँ पर, एंड 1 जून 2026 से ये लागू होता हुआ हमें देखेगा। करेक्ट, ये एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म रहेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। एक और चीज़ यहाँ पे सेबी के द्वारा की गई है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए जो पहले KYC होती थी वो 3 से 5 साल के लिए होती थी, अब उसको बढ़ा के 10 साल के लिए कर दिया। एंड ये अच्छा स्टेप किया गया है जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे सोच सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं LIC। इनके द्वारा 2 इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया, प्रोटेक्शन प्लस एंड बीमा कवच को। लेट मी शो यू। जो प्रोटेक्शन प्लस है ये लाइफ सेविंग प्लस लाइफ कवर है। 18 से 65 साल तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल 5 साल के बाद अलाउ हो जाएगा एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी है जिसमें 90 साल की है। वहीं पे बीमा कवच ये प्योर रिस्क प्लान है। 18 से 65 साल के रहेंगे, 28 से 100 साल तक की मैच्योरिटी रख सकते हैं एंड मिनिमम 2 करोड़ का यहाँ पे एश्योर्ड प्रीमियम रहेगा एंड स्पेशल प्रीमियम रहेंगे फॉर वीमेन एंड नॉन स्मोकर्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे। अभी तमिलनाडु के 5 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है, राइट। एंड ये तमिलनाडु अब सेकंड स्टेट है, या फिर हम बोल सकते हैं तमिलनाडु इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट विद द GI टैग्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ GI टैग्स। पहली पोजीशन पे कौन सी आती है वो आप होमवर्क में बताओ, मैं आपको बता नहीं रहा। एंड नंबर ऑफ GI टैग्स, GI प्रोडक्ट्स भी बताओ उस स्टेट के कितने हैं। अगर आते हैं कौन से 5 प्रोडक्ट्स हैं, वॉरियूर कॉटन साड़ी, देन जैगरी पाउडर रहेगा, काविंदापदी नाटू सकारई, देन सोपस्टोन कुकवेयर, थुयामली राइस एंड वुडन टॉयस। ये 5 वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी GI टैग मिला। टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं तमिलनाडु में विद GI टैग? 74। एंड ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है और सेकंड हाईएस्ट स्टेट है विद दिस GI टैग्स। फर्स्ट कौन सी है वो आप मुझे कमेंट में बताओ। मूविंग ऑन टू अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। इसके बाद आते हैं UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया कौन अपॉइंट किए गए हैं? ऑस्ट्रिया के स्टेफन प्रिसनर। इससे क्या होगा, UN के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, UN के जो एजेंडाज होते हैं वो हम इंडिया में इनके थ्रू इंप्लीमेंट होते हुए देखेंगे, राइट। जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, राइट, वो यहाँ पर इंडिया में इनका काम रहेगा इंप्लीमेंट कराना। चलिए, एंड ये 4 साल के रहेंगे, 2029 तक। ये किनको सक्सीड करेंगे? शॉम्बी शार्प को। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह। इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया 2026 तक, मतलब 6 दिसंबर 2026 तक ये इस पोजीशन में रहेंगे। इसी के अलावा आयरन बीम, ये किनका डिफेंस सिस्टम है स्टूडेंट्स? ये इजराइल का है, राइट। इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए अंत्योदय दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 25 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं अंत्योदय दिवस। नेक्स्ट ऑब्यूटरी पर आते हैं। इटालियन टेनिस लेजेंड निकोला पिट्रेंगली, इनका रिसेंटली निधन हो गया 92 की एज में। टेनिस हॉल ऑफ फेम में इनको 1986 में ऐड किया गया था। फिर इंपॉर्टेंट डेज पे आते हैं। इंडियन नेवी डे हम 4 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं एंड इंडियन नेवी को कमेमोरेट करने के लिए एंड इनको ये जो हमारे देश को सेफ रखने में अपना योगदान देते हैं उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, करेक्ट, 4 दिसंबर को। इसकी एक थीम याद रखेंगे, कॉम्बैक्ट रेडी, कोहेसिव, क्रेडिबल एंड आत्मनिर्भर फोर्स, ये थीम रहेगी। इसका इंडियन नेवी वीक 1 से 7 दिसंबर तक ऑब्जर्व करते हैं। पहली बार 1944 में इसको ऑब्जर्व किया गया था एंड 4 दिसंबर को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स, 4 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल है तो बेसिकली हम UN बॉडी के जो बैंक्स हैं ये, राइट, एंड इनसे जो एफिलेटेड बैंक्स हैं एंड ये जो ग्लोबली हमारे जो बड़े बड़े बैंक्स हैं इनका जो रोल है मॉनेटरी सिस्टम को प्रिजर्व करने का, राइट, उसके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, डेवलपमेंट है, उसको कैरी आउट कराने का जो एम रहता है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है एंड 6ठी बार हमने इसको ऑब्जर्व किया। इसकी भी एक थीम है स्टूडेंट्स, बैंक पावरिंग अ लिवेबल प्लैनेट। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके अलावा वर्ल्ड टूरिज्म डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 27 सितंबर को। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं, राइट, मार्क करके चलेंगे इसको। इवन यूरोपियन डे ऑफ लैंग्वेजेस कब ऑब्जर्व करते हैं? 26 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 25 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। तो ये कुछ डेज भी याद रखेंगे रिवीजन पर्सपेक्टिव से, करेक्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे जिससे आपकी लर्निंग स्ट्रांग होगी। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं तो इसको ज़रूर देखा करो। इसके बेसिस पे वीकली करंट अफेयर्स
मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रिवाइज प्रोवाइड की जाती है आपको, एंड ये सब कंटेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आ सके। चलिए चलते हैं रिवीजन पार्ट पे। नेम द कंट्री जिन्होंने डिजाइन दैट वाज डेजिग्नेटेड, जो कि 20वीं नॉन नेटो एलाई बनी है, राइट, नॉन नेटो अलाई बनी है। कौन सी है? यह है सऊदी अरेबिया। नेटो कौन है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो कहती हैं कि अगर एक पे अटैक होगा तो सब पे यहाँ पे अटैक माना जाएगा। एंड सऊदी अरेबिया अब नॉन नेटो अलाई यहाँ पे बन गई है बाय यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इनको डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री, कौन सी कंट्री बनी छठी फुल मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव? तो फुल मेंबर, 6th फुल मेंबर कौन सी बनी है? वो है सीशेल्स। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द की रिपोर्ट्स रिलीज ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 समिट, जो कि नवंबर में बेलेम ब्राजील में देखने को मिली। ऑप्शंस देखें यहाँ पे, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो ए सही है, बी सही है, सी गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में है, यहाँ पे इंडिया वॉज रैंक्ड अमंग द टॉप 10 कंट्रीज। तो नहीं, इंडिया की क्या रैंक थी यहाँ पर इन दिस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में? तो इंडिया आता है 23rd पोजीशन पर। टेक अ नोट ऑफ दिस। इंडिया कौन सी पोजीशन पे स्टैंड करता है? इंडिया 23rd पोजीशन पर यहाँ स्टैंड करता है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू साउथ अफ्रीका फॉर 2025 G20 लीडर समिट, जो कि नवंबर में थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई करो कंट्री को दैट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सी कंट्री को अभी पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया? वो है इंडोनेशिया को। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग इंडियाज की एंगेजमेंट एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 समिट, जो कि नवंबर ब्राजील बेलम में हमें देखने को मिली। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन बी सही है, सी सही है। ए कह रहा है कि इंडिया ने अनाउंस किया कि इंडिया होस्ट करेगा ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 को मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इसको COP30 के दौरान अनाउंस किया गया। तो सब सही है, इंडिया होस्ट करेगा, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र में इसको होस्ट नहीं करेंगे हम न्यू दिल्ली में इसको होस्ट करेंगे। अब सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, नेम द सेंट्रल बैंक जिन्होंने कोलैबोरेट किया आरबीआई एंड एनआईपीएल। आरबीआई एंड एनआईपीएल। एनआईपीएल क्या है? एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, राइट। इन्होंने क्या किया है कि ये बेसिकली यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ ये एमओयू साइन हुआ है ताकि यूरोपियन कंट्रीज में, राइट, यूपीआई एंड टीआईपीएस, जो कि है टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, इनके बीच में पार्टनरशिप की जा सके ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में यूपीआई एंड टिप से जो ट्रांजैक्शंस है वो हो सकें, राइट, पेमेंट लोग इजीली कर सकें, एक दूसरे को इजीली पैसा भेजा जा सके, इसीलिए ये पार्टनरशिप होती हुई दिख रही है, राइट। एंड इंडिया से हम देख रहे हैं यूपीआई एक गेम चेंजर रहा है स्टूडेंट्स, एंड ग्लोबल स्केल पे हमें सराहना इसकी देखने को मिल रही है। मल्टीपल कंट्रीज ने यूपीआई को अपनाया है। वन ऑफ द बिग रीजन क्या है? क्योंकि इंडियंस मल्टीपल कंट्रीज में है, इंडियंस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो उनके लिए ये बहुत सुविधा हो जाती है, एंड इनसे उनकी कंट्री से हम टाई अप करते हैं, तो ये एक ग्लोबल स्केल पे हमें दर्जा देखने को मिलता है यूपीआई का। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है स्टूडेंट्स। इसका क्वेश्चन क्या है? उस सेंट्रल बैंक का नाम, ये क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द बैंक जिन्होंने अभी एक एमओयू साइन किया एफपीएसबी के साथ। एफपीएसबी क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड लिमिटेड के साथ, एंड ये एमओयू साइन किया गया ताकि जो वेल्थ मैनेजमेंट टीम है इस बैंक की, जिन्होंने ये एमओयू साइन किया, उस बैंक की वेल्थ मैनेजमेंट टीम की स्किलिंग की जा सके, अपस्किलिंग की जा सके, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराई जा सके, राइट। पूछा जा रहा है कि कौन सी वो बैंक है जिन्होंने अपस्किलिंग के लिए एक एफपीएसबी के साथ एमओयू साइन किया ताकि उनकी वेल्थ मैनेजमेंट टीम की अपस्किलिंग की जा सके अंडर द अप्रूव्ड कॉर्पोरेट पार्टनर इनिशिएटिव। तो कौन सा बैंक रहेगा? ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट, how much was the loan approved by Asian Development Bank in November to boost road connectivity in महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए $400 मिलियन का लोन अप्रूव किया था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द स्मॉल फाइनेंस बैंक जिन्होंने रिसीव किया पोस्ट फैक्टो अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई फॉर स्टेक एक्विजिशन बाय 1729 कैपिटल, जो कि एक सेबी अप्रूव्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है। नवंबर के महीने में ये अप्रूवल देखने को मिला। तो वो कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है? वो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। तो 1729 कैपिटल ये एक्वायर करेंगे 7.14% स्टेक इन सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने अप्रूव किया $776 मिलियन का लोन फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन पंजाब एंड महाराष्ट्र। देखो, पंजाब में जो प्रोजेक्ट पे फोकस किया जाएगा ना, वो एजुकेशन के ऊपर काम किया जाएगा। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट रहेगा वो है POISE, पॉइस प्रोजेक्ट के ऊपर ये पैसा जाएगा। $286 मिलियन यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। पॉइस क्या है? पंजाब आउटकम्स एक्सेलरेशन इन स्कूल एजुकेशन ऑपरेशन, राइट। 5 साल का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में POCRA का फेज 2 जाएगा। ये एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे पैसा लगेगा एंड $490 मिलियन यहाँ पे अप्रूव करे गए हैं। तो किस इंटरनेशनल फाइनेंशियल बैंक ने अप्रूव किया है? तो ये है वर्ल्ड बैंक, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC, एंड इनके प्रेसिडेंट अजय बंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने सिक्योर किया सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI इन नवंबर टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर अंडर पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007। तो आइडेंटिफाई दैट कंपनी, वो है पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, चूज द कंट्री जिन्होंने रिलीज किया एक ₹100 का डिनोमिनेशन नोट। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज, जो ये नोट की प्रिंटिंग कर रही है उस कंट्री नेपाल का है बेसिकली, ये आपको मैं बता देता हूँ। एंड इसका ठेका दिया गया है चाइना की एक कंपनी को, राइट। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो ₹100 का जो ये नोट है, राइट, इस पे इंडिया की डिस्प्यूटेड टेरिटरीज आई हैं, काला पानी, लीपू लेक एंड लिम्पियधरा, राइट। तो इन्होंने अपने नोट पे इंडिया की टेरिटरीज मार्क कर दी हैं एंड फिर उनकी प्रिंटिंग का ठेका दे दिया चाइना की एक कंपनी को, विच इज़ रॉन्ग, करेक्ट। इसीलिए ये हेडलाइंस में आजकल। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट जहां पर मथुरा, पोशाक एंड मेरठ, बुगली इनको रिकॉग्नाइज किया गया फॉर देयर कल्चरल, इकोनॉमिक एंड आर्टिशन सिग्निफिकेंस। इन्होंने रिसीव किया GI टैग स्टेटस इन नवंबर। तो ये प्रोडक्ट्स कहां से हैं? ये यूपी के प्रोडक्ट रहेंगे, टेक अ नोट। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको क्राउन किया गया मिस यूनिवर्स 2025 एट द 74th एडिशन ऑफ द पेजेंट, जो कि थाईलैंड में हमें देखने को मिला। तो किनको क्राउन किया गया मिस यूनिवर्स? वो है फातिमा बॉश फर्नांडिस। ये कहाँ से ये बिलोंग करती हैं? ये मैक्सिको से बिलोंग करती हैं एंड इनको अभी क्राउन किया गया मिस यूनिवर्स। ये 74th पेजेंट था, मिस यूनिवर्स पेजेंट, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम दैट इंडियन एनिमेटेड फिल्म जिन्होंने एंटर किया ऑस्कर 2026 की रेस में, राइट, फॉर बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म कैटेगरी एज ऑफिशियली लिस्टेड बाय द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। कौन सी इंडियन फिल्म रहेगी? वो है महाअवतार नरसिम्हा। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट अपॉइंटेड सुनील पालीवाल एज देयर चेयरपर्सन इन नवंबर। ये सक्सीड करेंगे विजय कुमार को, हु मूव टू द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो राइट ऑप्शन है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सक्सीड किनको करेंगे? विजय कुमार को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अभी नेम किया गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एज अनाउंस्ड बाय ICC चेयरमैन जय शाह। तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो है रोहित शर्मा को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। एंड इस ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 को इंडिया होस्ट कर रहे हैं अलॉन्ग विद श्रीलंका। मार्क करेंगे कब से कब तक होगा? 7 फेब से लेके 8 मार्च तक ये इवेंट होगा। ऑल द क्रिकेट लवर्स, राइट, तो ये डेट नोट डाउन कर लो। 7 फेब से 8 मार्च तक ये इवेंट होगा। इंडिया एंड श्रीलंका इसको को होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु विल अज्यूम द चेयर ऑफ IIDEA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस एज अनाउंस्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन नवंबर। तो गणेश कुमार ये चेयर करेंगे IIDEA को। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड द इंडिजीनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS माहिको कमीशन बाय द इंडियन नेवी इन नवंबर। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यहाँ पे इनको बना रही है। सो टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेलेक्ट द कंपनी जिन्होंने साइन किया एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट DRDO के साथ ताकि ड्राइवर नाइट साइट सिस्टम को बनाया जा सके T90 टैंक्स के लिए। तो DRDO ने इसको डेवलप किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इसके ऊपर काम किया एंड फिर इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर दिया पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड को। अब ये इनकी प्रोडक्शन करेगी ताकि T90 टैंक्स में ये सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर राइफल एंड पिस्टल। ये भी हमें देखने को मिली, कायरो इजिप्ट में हुई थी, राइट, जहां पे इंडिया ने सिक्योर की 3rd पोजीशन। तो हमारे इंडिया की 3rd पोजीशन रही विद अ टोटल ऑफ 13 मेडल्स। पूछा जा रहा है मेडल टैली में यहाँ पे टॉप किसने किया? तो यहाँ पे मेडल टैली में चाइना ने टॉप किया है। 21 मेडल थे चाइना के, जिसमें से 12 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज रहेंगे। फिर साउथ कोरिया आ जाता है एंड देन
सेकंड पोजीशन पे साउथ कोरिया एंड देन इंडिया थर्ड पोजीशन पे। मूविंग ऑन, किन्होंने अभी लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स को जीता जो कि यूएसए में हुई थी? तो किन के द्वारा जीती गई? मैक्स वर्स्टैपन के यहाँ द्वारा जीती गई। मैक्स वर्स्टैपन रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं जॉर्ज रसल, ये भी रेड बुल के ये मर्सिडीज़ के लिए ड्राइव करते हैं, ये यूके से हैं। एंड किमी एंटियोली ये थर्ड पोजीशन पे आए, ये भी मर्सिडीज़ के लिए ड्राइव करते हैं एंड ये इटली से हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द टीम जिन्होंने अभी इंडियन वीमेंस कबड्डी टीम को हराया इन ढाका बांग्लादेश टू विन द सेकेंड एडिशन ऑफ द वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप टाइटल। तो नेम द टीम दैट इंडिया वीमेंस टीम डिफीटेड। तो इंडियन वीमेंस कबड्डी टीम ने चाइनीज ताइपेई वीमेंस टीम को हराया इन द फाइनल्स टू विन द सेकेंड एडिशन ऑफ वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप टाइटल। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ अभी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 18 से 23 नवंबर तक ये इवेंट हुआ, राइट। एंड यहाँ पे नेम द प्लेयर हु वन द मेन सिंगल्स टाइटल। तो मेन सिंगल टाइटल किन के द्वारा जीता गया? इंडिया के लक्ष्य सेन के द्वारा यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता गया। काफी इंपॉर्टेंट है ये, मार्क करके चलेंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 25th समर डेफ्लाई ओलंपिक्स जो कि टोक्यो जापान में हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शंस, ए सही है, सी सही है, बी गलत है। ये कह रहा है कि जो 25वां समर डेफ्लाई ओलंपिक्स था इसको ऑर्गेनाइज किया गया आईओसी के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो नहीं, इसको आईसीएसडी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ पीपल। नेक्स्ट आ जाते हैं कहाँ पर 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट होंगे एज अप्रूव्ड बाय द कॉमनवेल्थ फेडरेशन जनरल असेंबली। तो 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी होस्टेड कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में इंडिया ने बिड की थी, राइट, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एंड 2036 के ओलंपिक गेम्स के लिए। दोनों की बिड थी कि हम अहमदाबाद गुजरात में इनको होस्ट करेंगे एंड 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की बिड हमारी अप्रूव हो गई है। ओलंपिक गेम्स की लेट्स सी क्या होता है, बट कॉमनवेल्थ गेम्स की हमारी बिड अप्रूव हो गई है एंड अहमदाबाद गुजरात, जिसको अब हम स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी बोला जा रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे, राइट। एंड वहीं पर ये इवेंट हमें होस्ट होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 11वां एडिशन ऑफ फाइट चेस वर्ल्ड कप अभी कहाँ पर हुआ? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में हमें देखने को मिला, गोवा में। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक ये इवेंट हुआ था। पूछा जा रहा है हु इमर्ज्ड एज द यंगेस्ट एवर चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट। तो वो है जावोखिर सिंद्रोव, ये उज्बेकिस्तान के प्लेयर हैं, राइट। एंड ये यंगेस्ट इंडिविजुअल बने, करेक्ट, जिन्होंने यहाँ पे फाइट चेस वर्ल्ड कप को जीता। एंड ये 11वां एडिशन था, ये भी मार्क करके चलेंगे। ये 19 साल के हैं। नेक्स्ट, रिनोन बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र जी, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया, जिनको शोले में हम वीरू का जिन्होंने किरदार निभाया था, काफ़ी फेमस मूवी हुई थी, राइट। एंड इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। इनको पद्मा भूषण से 2012 में सम्मानित किया गया था। पद्मा भूषण थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, मार्क करके चलेंगे। मूविंग ऑन, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसको हम संविधान दिवस के नाम से भी जानते हैं, ये ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था। तो कब ऑब्जर्व करते हैं हम इसको? 26 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। 1949, 26 नवंबर 1949 में ये अडॉप्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है 26 नवंबर को। इट इज़ टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन, इन्हीं को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यही व्हाइट रेवोल्यूशन इंडिया में लाए थे, इन्हीं को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। एंड व्हाइट रेवोल्यूशन है क्या? मिल्क रेवोल्यूशन, राइट। मिल्क का जो रेवोल्यूशन इंडिया में देखने को मिला, डेयरी का, राइट, उससे रिलेटेड ये इन्होंने बहुत काम किया है। एंड इनके बर्थडे पे हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मिल्क डे। नेक्स्ट, इन नवंबर द बोकारो स्टील प्लांट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने एक लाइसेंसिंग अग्रीमेंट साइन किया फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी विद डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी अंडर डीआरडीओ। पूछा जा रहा है किस स्टेट में लोकेटेड है बोकारो स्टील प्लांट? तो बोकारो स्टील प्लांट कहां पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है झारखंड में। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं 13th जॉइंट मिलिट्री कॉपरेशन कमेटी मीटिंग हुई बिटवीन इंडिया एंड ओमान, राइट, जहाँ पे फोकस था कि कैसे हम इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकते हैं, डिफेंस कॉपरेशन ला सकते हैं, राइट। तो ये कहाँ पर मीटिंग हुई? ये न्यू दिल्ली में हमें मीटिंग देखने को मिली। मूविंग ऑन, अभी एक मैसिव वॉल्केनो इरप्ट हुआ। ये वॉल्केनो का नाम था हेली गुबी वॉल्केनो
एंड इससे क्या हुआ, अगर आपने न्यूज़ फॉलो की हो तो बोला गया था जब ये इरप्ट हुआ तो इंडिया पे भी इसका काफ़ी असर होगा दो चीज़ों से। एक तो पॉल्यूशन आएगा क्योंकि जो ऐसी फ्यूम्स हवा में गई वो विंड्स की डायरेक्शन इंडिया की तरफ थी, राइट, तो इंडिया में काफ़ी इफेक्ट इसका देखने को मिला। दूसरा, इसकी वजह से जो फ्लाइट्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी बंद हो गई थी, राइट, उनको यहाँ पे कैंसिल करना पड़ा था, वाइड स्प्रेड यहाँ पे कैंसिलेशन हुई थी। पूछा जाएगा कि जो ग्यूबी हाईली गोबी वॉल्केनो है ये किस कंट्री में लोकेटेड है, तो ये कहां पर लोकेटेड है, ये इथोपिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट पार्टनर्ड विद गावी, जो कि एक वैक्सीन अलायंस है, राइट, नवंबर के महीने में इनकी पार्टनरशिप हुई, करेक्ट, एंड ये पार्टनरशिप थी फॉर द लैंडमार्क प्राइसिंग एंड प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट, जो कि रिड्यूस कर देगी कॉस्ट ऑफ R/1 मैट्रिक्स एम, ये एक मलेरिया वैक्सीन है। तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वो यूनिसेफ ने ये पार्टनर किया है गावी के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनको ऑनर किया गया एज द विनर ऑफ द एविटार एंड सेरामाउंट बेस्ट कंपनीज फॉर वीमेन इन इंडिया, रिकॉग्नाइजिंग देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स इंक्लूसिव, डाइवर्स एंड इक्विटेबल वर्कफोर्स। आइडेंटिफाई द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। सो सिंपल क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहां पर है, वडोदरा, गुजरात में। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी 10वां सेशन था ऑफ द इंडिया स्लोवेनिया जॉइंट कमेटी ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो न्यू दिल्ली में हुई। ये रिव्यू कर रही है बायलेटरल ट्रेड एंड एक्सपेंडिंग द इकोनॉमिक कॉपरेशन। कैपिटल पूछी गई है स्लोवेनिया की, तो स्लोवेनिया की कैपिटल क्या है, ल्यूब्लियाना। नेक्स्ट, अभी प्यूमा इंडिया, इन्होंने अपॉइंट किया किनको एज द मैनेजिंग डायरेक्टर, जो सक्सीड करेंगे कार्तिक बालागोपालन को, तो यह है राम प्रसाद श्रीधरन, राइट, इनको अपॉइंट किया गया नया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्यूमा इंडिया, एंड ये किनको सक्सीड करेंगे, कार्तिक बालागोपालन को। होमवर्क सेक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी हु इज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू आयरलैंड। सेकेंड क्वेश्चन, टेल मी recently who won the Nobel Prize, let's revise them, in chemistry, in physics, and Nobel Peace Prize also. Then third question students, recently JMX exercise was held. Let me tell you, this was held between Japan Navy and Indian Navy. Your homework is to tell me which Indian naval ship took part in this JMX. Then fourth question students, recently Indian Coast Guard, they have launched a Indian Coast Guard ship. Name that Indian Coast Guard ship that was recently launched. That is a fast patrol vessel. Right? Take a note of this. Very important. Then tell me who will be the torch bearer. This is your fifth question, students. Who is the torch bearer for Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games? So these are your 5 homework questions students, and I need to see maximum participation for all the students watching this video. So students, that's all for the day. Thank you and have a nice day.